Hello, everybody. Welcome back to Lit Up with Annie. We have been covering the syllabus of UPPSC GDC assistant professor के लिए जो आपका एग्जाम है इंग्लिश का in a few free sessions and of course in the main paid course. Today we are going to talk about an important work by Walter Benjamin, The Task of the Translator, which is in your syllabus. ठीक है, इसकी हम आज बात करने वाले हैं. If any of you wishes to join the full course for UPPSC GDC, we have an offer going on since we are completing 1 year of Lit Up with Annie, the paid course, the organized learning with Lit Up with Annie on 13th of January. So on that occasion, we have had an offer ongoing in which you are getting the full course along with the MCQs at just 3,999 UPPSC GDC ka course. So get in touch with me and you can join the course. Let's move on to talk about the work. Now, this is the original text. Walter Benjamin, this is volume 1 from 1913 to 1926. It was edited by Marcus Bullock and Jennings, and this is the press, and this is how the essay starts. एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या है. ठीक है, वैसे तो नाम से पता चल रहा है द टास्क ऑफ द ट्रांसलेटर. आपका जो यूनिट है ट्रांसलेशन वाला, उसमें ये है. बाकी जितने भी टेक्स्ट्स हैं ट्रांसलेशन यूनिट में, वो मैंने सारे फ्री क्लासेस में करवाए हैं. सो इफ यू नॉट सीन देम, सर्च एंड यू विल फाइंड इट. In the appreciation of a work of art or an art form, consideration of the receiver never proves fruitful. किसी भी वर्क ऑफ आर्ट की अप्रिसिएशन में या किसी भी आर्ट फॉर्म की अप्रिसिएशन में जो रिसीवर है उसका जो कंसिडरेशन होता है ना, इट नेवर प्रूव्स फ्रूटफुल. नॉट ओनली इज एनी रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर पब्लिक और इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स misleading, but even the concept of an ideal receiver is detrimental in the theoretical consideration of art, since all it posits is the existence and nature of man as such. Art, in the same way, posits man's physical and spiritual existence, but in none of its works is it concerned with his attentiveness. Do you understand? किसकी बात हो रही है? जो रिसीविंग एंड पे है उस वर्क के, उसकी. नो पोएम इज इंटेंडेड फॉर द रीडर, नो पिक्चर फॉर द बिहोल्डर, नो सिम्फनी फॉर द ऑडियंस. किसी भी वर्क ऑफ आर्ट में या किसी भी आर्ट फॉर्म में रिसीवर को कभी कंसिडर नहीं किया जाता, ये वो कह रहे हैं. उसका जो रेफरेंस है उसकी बात ही नहीं होती. सो देयर इज इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल रिसीवर इज डेट्रीमेंटल. ठीक है, इन अ ट्रांसलेशन मेंट फॉर रीडर्स who do not understand the original. Is the translation meant for the reader who do not understand the original, do you think? This would seem to explain adequately the fact that the translation and the original have very different standing in the realm of art. है ना? ये फैक्ट कि जो ट्रांसलेशन है और जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो अलग अलग है, उन दोनों की स्टैंडिंग्स अलग अलग हैं आर्ट के रियल्म में. मोर ओवर, इट सीम्स टू बी द ओनली कंसीवेबल रीजन फॉर सेइंग द सेम थिंग ओवर अगेन. What does a literary work say? What does it communicate? It tells very little to those who understand it. Its essential quality is not communication or the imparting of information. Yet any translation that intends to perform a transmitting function cannot transmit anything but communication, hence something inessential. ये ओरिजिनल टेक्स्ट इस तरह से है, एंड ऑफ कोर्स यू कैन गो ऑन टू रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट, क्योंकि बहुत छोटा भी नहीं है बट बहुत बड़ा भी नहीं है. ठीक है, लेकिन जितना टाइम मुझे आपको इसका एक ओवरव्यू, एक उसकी डिटेल्ड समरी देने में लगेगा, हो सकता है उतना टाइम आपको पूरा पढ़ने में लगे. तो लेट्स स्टार्ट. मैं आपको ये बताती हूँ अब इसमें है क्या. 1923, it was written as a preface to his German translation of Baudelaire's Tableaux Parisiens. ठीक है, तो
बॉडलेयर का वर्क था, जर्मन वर्क, उसको ट्रांसलेट किया था बेंजामिन ने। उसके प्रीफेस में ये लिखा इन्होंने, द टास्क ऑफ द ट्रांसलेटर, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसॉफिकल एसेज ऑन ट्रांसलेशन थ्योरी. So rather than treating translation as a secondary or utilitarian activity concerned with communication or meaning transfer, Benjamin reconceptualizes translation as philosophical, metaphorical and linguistic art. तो कहते हैं कि ट्रांसलेशन को सिर्फ आप सेकेंडरी फॉर्म मत की तरह मत देखो कि वो सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए बनाई गई है, कि ओरिजिनल पढ़ नहीं सकते आप तो ये मैं कम्युनिकेट इंग्लिश रीडर्स को कर दूं. नहीं, ट्रांसलेशन फिलोसॉफिकल है, मेटाफिजिकल है, एक लिंग्विस्टिक एक्ट है. तो ये जो ऐसे है, इट शिफ्ट्स द फोकस अवे फ्रॉम फिडेलिटी टू मीनिंग और रीडरली क्लैरिटी एंड इंस्टेड situates translation within the afterlife Uberleben of a literary work. तो जो हमेशा से फोकस जो होता है ना एसेज का, वो क्या होता है, क्या किसी भी एक थॉट प्रोसेस का मीनिंग पे या रीडरली क्लैरिटी पे, तो उससे शिफ्ट करके इन्होंने किस पे कर दिया है, it situates translation within the afterlife of a literary work. Translation for Benjamin participates in the historical and spiritual unfolding of language itself. तो जब आप ट्रांसलेट कर रहे हो बेंजामिन के अकॉर्डिंग, अपने आप में वो एक क्या है, एक स्पिरिचुअल अनफोल्डिंग है, एक हिस्टोरिकल अनफोल्डिंग है. आप लैंग्वेज को अनफोल्ड कर रहे हो, एमिंग टूवर्ड्स व्हाट ही कॉल्स प्योर लैंग्वेज. फ्रॉम दिस रेंज पार्ट्स है प्योर लैंग्वेज, a utopian reconciled realm where languages converge beyond instrumental communication. कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, इट इज बियॉन्ड दैट. अब देखते हैं ऐसे में क्या क्या है. सबसे पहले रिजेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन एज ट्रांसलेशंस प्राइमरी एम. तो बेंजामिन शुरू करते हैं बाय रिजेक्टिंग द आइडिया कि ट्रांसलेशन एग्जिस्ट करती है टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेट कंटेंट या मीनिंग टू रीडर्स हु कैन नॉट असेस द ओरिजिनल लैंग्वेज. अब मुझे कोई उर्दू का टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा तो मैं उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ूंगी, लेकिन क्या उस इंग्लिश ट्रांसलेशन का सिर्फ ये मतलब है कि वो मुझे इंफॉर्मेशन दे, वो मेरे तक कम्युनिकेट करे सारा कंटेंट या मीनिंग? अकॉर्डिंग टू वॉल्टर बेंजामिन, नो. A literary work, he argues, is not primarily addressed to readers. रीडर का तो हो सकता है दिमाग में भी ना हो. Nor is it meant to transmit information. तो ना वो रीडर तक को एड्रेस करने के लिए है, ना ही वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए है. Likewise, a translation that merely reproduces meaning misunderstands the essence of both literature and translation. अब कुछ लोग, आजकल सब लोग ट्रांसलेशन करेंगे, हम सब लोग ट्रांसलेशन कर नहीं पाते. कुछ लोगों का जो एम है ट्रांसलेशन का वो सिर्फ यही है, क्या, एक मियर रिप्रोडक्शन ऑफ द. तो वो लोग लिटरेचर और ट्रांसलेशन दोनों को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं. देयरफॉर ट्रांसलेशंस आर नॉट मेड फॉर रीडर्स, जैसे कि पोएम्स आर नॉट रिटन फॉर रीडर्स. हर राइटर का पोएट्री लिखने का अपना एक इसेंस है. आप लोगों में से बहुत सारे लोग पोएट्री लिखते हैं या प्रोज लिखते हो. क्यों लिखते हो आप ये सोचो. क्या आप किसी पर्टिकुलर रीडर को कुछ बताना चाह रहे हो, या प्राइमरीली उसका फंक्शन कुछ और है, अपने अंदर की इमोशंस को एक्सप्रेस करना, मे बी कुछ भी हो सकता है. सो दिस रैडिकल क्लेम undermines utilitarian and pedagogical approaches to translation and positions it as an autonomous literary and philosophical form. तो ट्रांसलेशन अपने आप में एक फॉर्म है, एक आर्ट फॉर्म है. ठीक है. दूसरी चीज वो बात करते हैं ट्रांसलेशन एंड द आफ्टर लाइफ ऑफ द ओरिजिनल. दिस इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन द एसे, आफ्टर लाइफ. A literary work is not static or complete at the moment of its creation. Rather, it continues to live, change and unfold across time. कि मैंने एक लिटरेरी वर्क कंपोज किया तो ये कह रहे हैं इट इज नॉट स्टैटिक. पहली बात, ना वो कंप्लीट है उस मोमेंट में जब वो क्रिएट हुआ, वो कंटिन्यू करता है क्योंकि वो लिव तो कर रहा है अक्रॉस जनरेशंस, चेंज भी कर रहा है बिकॉज थॉट प्रोसेस, उसको रिसीव करने का प्रोसेस भी तो चेंज हो जाता है अक्रॉस टाइम. ट्रांसलेशन इज वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सप्रेशंस ऑफ दिस कंटिन्यूड लाइफ.
ट्रांसलेशन डज नॉट सर्व द ओरिजिनल। ऐसा मत सोचना कि ट्रांसलेशन तो किसी और के आर्ट वर्क को ही तो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, नहीं। इट व्हाट इट डज इज द ओरिजिनल कॉल्स फॉर ट्रांसलेशन। ओरिजिनल वर्क को जरूरत है शायद when it reaches a moment of historical ripeness, जब वो एक ऐसे मोड पे पहुंच जाती है, लेट्स से कुछ ऐसे टेक्स्ट्स जो ओल्ड इंग्लिश में लिखे गए हैं हमें नहीं समझ में आते, तो आज का समय की ये डिमांड है कि उस टेक्स्ट को अगर पढ़ना है तो उसको ऐसी लैंग्वेज में लाया जाए जो सबके समझ में आए। यस ऑफ कोर्स। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट इज कॉलिंग फॉर ट्रांसलेशन because historically it has ripened. So translation belongs not to the origin of the text, but to its future. Translation is the future of that original text after life of the original text. The relationship between original and translation is not hierarchical, but it is organic. Translation allows the original to survive. ठीक है, ट्रांसलेशन की वजह से शायद वो ओरिजिनल टेक्स्ट सरवाइव कर पा रहा है आज, अदरवाइज उसकी तो राइपनेस आ गई थी और शायद कोई उसको पढ़ नहीं पाता अब। तो ट्रांसलेशन मेड इट पॉसिबल कि वो टेक्स्ट सरवाइव कर पाए, ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्म इन न्यू लिंग्विस्टिक एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट्स, और वो ट्रांसफॉर्म भी कर पाए न्यू लिंग्विस्टिक और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट्स में। थर्ड बात जो ये करते हैं वो है लैंग्वेजेस एज फ्रैगमेंटरी एंड इनकम्प्लीट। तो बेंजामिन आर्ग्यू करते हैं कि कोई भी सिंगल लैंग्वेज कंप्लीट नहीं है, ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। हर एक लैंग्वेज एक्सप्रेस करती है सिर्फ फ्रैगमेंट ऑफ मीनिंग एंड अप्रोचेस ट्रूथ फ्रॉम अ पार्शियल एंगल। लैंग्वेजेस आर देयरफॉर हिस्टोरिकली कंटिंजेंट एंड म्यूचुअली incomplete. Translation does not aim to replace one language with another, but to bring languages into a relationship. तो ये कह रहे हैं कि कोई भी लैंग्वेज अपने आप में कंप्लीट नहीं है, वो फ्रैगमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है मीनिंग का। किसी एक ट्रूथ को अप्रोच करने के लिए वो सिर्फ एक एंगल प्रोवाइड कर सकती है। इसलिए हर एक लैंग्वेज जो है वो म्यूचुअली इनकम्प्लीट है। तो ट्रांसलेशन का एम क्या है? उसका एम ये नहीं है किसी एक लैंग्वेज को रिप्लेस करना दूसरे से, नहीं कि जर्मन में ये वर्क लिखा है, मैं कोई ये रिप्लेस करके इंग्लिश में लाना है, लेकिन उन लैंग्वेजेस को रिलेशनशिप में लेके आना। ट्रांसलेशन होएगी तो लैंग्वेजेस एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे एंड दे विल मूव क्लोजर टू एन अल्टीमेट रिकंसिलिएशन। तो ये जो रिकंसिलिएशन है इज नॉट अचीव्ड थ्रू कम्युनिकेटिव क्लैरिटी बट थ्रू लिंग्विस्टिक रेजोनेंस। फोर्थ कॉन्सेप्ट इन्होंने बात की है प्योर लैंग्वेज की। तो एक फिलोसॉफिकल कोर में जो ऐसे है, एक आइडिया देते हैं हमें प्योर लैंग्वेज का। क्या है प्योर लैंग्वेज? कोई एक्चुअल स्पोकन लैंग्वेज नहीं, लेकिन एक आइडियल मेसियानिक होराइजन इन विच ऑल लैंग्वेजेस कन्वर्ज। तो कोई एक ऐसा पॉइंट सोचो जहां पे ये इंडिविजुअल लैंग्वेजेस की बात नहीं हो, सारी लैंग्वेज एक जगह आके कन्वर्ज कर रही हो। वो एक पॉइंट, ठीक है। सो प्योर लैंग्वेज इज नॉट एन एक्चुअल स्पोकन लैंग्वेज बट एन आइडियल मेसियानिक होराइजन इन विच ऑल लैंग्वेजेस कन्वर्ज। मेसियानिक क्या होता है? मसीहा से रिलेटेड, जीसस से रिलेटेड, या फिर बहुत पैशनेट भी हो सकता है। सो इट represents truth beyond communicative intent, a realm where meaning exists without distortion, tension or meditation. तो एक डिवाइन रेवलेशन, जैसे डिवाइन होराइजन पे आप पहुंच गए हो। तो ट्रांसलेशन जेस्चर्स टुवर्ड्स प्योर लैंग्वेज। हाउ? by releasing what Benjamin calls the intentio of the original language into the target language. Each translation contributes a fragment to this larger unreachable totality. Therefore, thus, translation is not about equivalence but
अबाउट रेवलेशन। तो ट्रांसलेशन एक ऐसी चीज है जो हमें जेस्चर करती है टुवर्ड्स प्योर लैंग्वेज। कैसे? जो भी ओरिजिनल लैंग्वेज का इंटेंशियो है वो रिलीज करके इनटू टारगेट लैंग्वेज। नेक्स्ट बात इन्होंने कही है लिटरलनेस, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन और फॉर्म की। तो बहुत कंट्रोवर्शियली एडवोकेट करते हैं ये एक फॉर्म ऑफ लिटरल ट्रांसलेशन, but not in the traditional sense of fidelity to meaning. Instead, literalness refers to fidelity to the mode of signification, syntax, rhythm, and linguistic structure of the original. बहुत कॉन्ट्रोवर्शली ये क्या करते हैं, ये एडवोकेट कर रहे हैं एक ऐसा फॉर्म ऑफ लिटरल ट्रांसलेशन, लेकिन ट्रेडिशनल सेंस में नहीं कि आपने एकदम मीनिंग के टुवर्ड्स लॉयल रहना है। एक ऐसा लिटरलनेस टू फिडेलिटी, लिटरलनेस रेफर्स टू फिडेलिटी टू द मोड ऑफ सिग्निफिकेशन, सिंटैक्स, रिदम एंड लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर टू द ओरिजिनल। कि आप कोशिश करो ये सारी चीजें एटलीस्ट फिडेल रहें। तो वो डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन मीनिंग एंड द वे ऑफ मीनिंग। मीनिंग, सेंस। आप सेंस तो ट्रांसलेट कर सकते हो ना, जरूरी नहीं है कि वर्ड फॉर वर्ड करना है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, अब इसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, रोप्स बर्न्ड बट बैलेंस मेंटेन्ड। ओ माय गॉड, दैट्स वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, लेकिन इट लूजेस द इसेंस, इट लूजेस द मीनिंग। सेंस को लेके आना है, द वे ऑफ मीनिंग विच इज बाउंड टू द मटीरियलिटी ऑफ लैंग्वेज। So, a translation that prioritizes fluency or readability risks domesticating the foreignness of the original. तो एक अगर ऐसी ट्रांसलेशन है जो फ्लुएंसी को प्रायोरिटाइज कर रही है या रीडेबिलिटी को प्रायोरिटाइज कर रही है, वो क्या रिस्क कर देते हैं? डोमेस्टिकेटिंग द फॉरेननेस ऑफ द ओरिजिनल। एक ऐसी लैंग्वेज में जो आपके लिए बहुत फॉरेन है, लेट्स से कोई जर्मन में वर्क है, आपको नहीं आता, उसको आप रीडेबिलिटी के हिसाब से या बिल्कुल वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करोगे, उससे क्या होगा? वो डोमेस्टिकेशन नहीं आ पाएगी उसमें। ट्रू ट्रांसलेशन क्या करेगी? स्ट्रेंजनेस को प्रिजर्व करेगी, अलाउइंग द टारगेट लैंग्वेज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द सोर्स लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट बात इन्होंने कही है द अनट्रांसलेटेबल कोर की। तो बेंजामिन इंट्रोड्यूस करते हैं द आइडिया ऑफ अ न्यूक्लियस इन द टेक्स्ट दैट इज फंडामेंटली अनट्रांसलेटेबल। बहुत सारी ऐसी चीजें टेक्स्ट में आती हैं जो हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते। दिस एलिमेंट इज नॉट मीनिंग बट द यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन कंटेंट एंड लैंग्वेज इन द ओरिजिनल। While meaning can be transferred and retranslated, this nucleus resists further translation. ये जो ये न्यूक्लियस है ना एक टेक्स्ट में, जिसको आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते, उससे क्या होता है? ये जो एलिमेंट है ये इट्स नॉट मीनिंग, लेकिन एक यूनिक रिलेशनशिप है बिटवीन कंटेंट एंड लैंग्वेज इन द ओरिजिनल। कोई ऐसी चीज जो उसी लैंग्वेज में ही उसका एक ह्यूमर भी मेंटेन रहे, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब मीनिंग को तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं या रीट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन ये एक आइडिया, एक न्यूक्लियस, इट रेजिस्ट्स फर्दर ट्रांसलेशन। पैराडॉक्सिकली यही जो अनट्रांसलेटेबल एलिमेंट है, ये देता है ट्रांसलेशन को उसकी डिग्निटी और नेसेसिटी। Translation points towards something it can never fully achieve, thereby revealing the limits of language itself. ठीक है, तभी तो देखो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, हिंदी के वर्ड्स हैं जो इंग्लिश अब डिक्शनरी में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी आइडियाज या ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो अपने आप में कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे चाय फॉर एग्जाम्पल। चाय तो चलो चाय है, पीने वाली चाय, लेकिन चाय अपने आप में एक आइडिया है हमारे कल्चर में। मतलब जैसे सब लोग चाय नहीं पीते, ठीक है, लेकिन जो लोग पीते हैं आप उनको पूछो, हाउ चाय इज अ कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ।
चाय के बिना पूरा नहीं होगा वो, उनका जो आइडिया है दिमाग में, चाय समोसा, उस तरह से, या चटनी या अचार। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो हम चाहते हैं कि हम उसको ट्रांसलेट करें भी ना। बाज़ार, यू डोंट वांट टू ट्रांसलेट इट इन द लैंग्वेज नाउ, ठीक है? ट्रांसलेशन एज़ अ डिस्टिंक्ट लिटरेरी फॉर्म। तो बेंजामिन इंसिस्ट करते हैं कि ट्रांसलेशन इज़ नीदर अ डेरिवेटिव नॉर इंफीरियर एक्टिविटी। तो ट्रांसलेशन को नीचे मत समझना, एक डिस्टिंक्ट लिटरेरी मोड है, इट्स सेपरेट फ्रॉम ओरिजिनल क्रिएशन, और जो ट्रांसलेटर का टास्क है वो बहुत अलग है फ्रॉम दैट ऑफ अ पोएट। पोएट का इंटेंशन बहुत स्पॉन्टेनियस है, जो वो सोच रहा है, जो फील कर रहा है, वो लिख रहा है, प्राइमरी है, इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीनिंग विद इन अ लैंग्वेज। लेकिन ट्रांसलेटर का इंटेंशन डेरिवेटिव है, रिफ्लेक्टिव है, सोच समझ के कर रहा है जो है, and it is directed towards language as a totality. So translator stands outside the forest of language, calling into it and listening for an echo, an image Benjamin uses to describe how translation works through resonance rather than replication. आप replicate नहीं कर रहे हो, आप उसका echo ले रहे हो। आप यहाँ से जोर से चिल्लाओ, माउंटेन से आवाज वापस आ रही है, echo आ रहा है, वो कर रहा है ट्रांसलेशन। The romantic legacy and the dignity of translation, Benjamin aligns his theory with the German romantics, especially figures like Schlegel, Holderlin, Luther, and Voss, who understood translation as a creative and philosophical act. He notes that some great translators were not primarily poets, and that translation often surpasses original creation in its historical and linguistic significance. ऐसा बहुत बार होता है, कुछ ग्रेट ट्रांसलेटर्स ऐसे हैं जो पोएट्स नहीं थे, और कभी कभी ट्रांसलेशन सरपास कर जाती है ओरिजिनल क्रिएशन को भी अपनी हिस्टोरिकल और लिंग्विस्टिक सिग्निफिकेंस में। So romantic irony and self-reflexivity, Benjamin suggests, anticipated the idea of literary works as living entities whose meaning unfolds through criticism and translation. Next, there is a critique of fidelity and license. कुछ लास्ट में कंक्लूडिंग सेक्शंस में बेंजामिन डिसमेंटल कर देते हैं पहले तो ट्रेडिशनल बाइनरी को, fidelity versus freedom, that I have a license now, I have a freedom to translate and to maybe, I don't know, change a few things, or maybe maintain the structure and the sense but through a different method. Fidelity to meaning का क्या मतलब है? Truthfulness, loyalty. वो कहते हैं ये insufficient है, क्यों? क्योंकि meaning is inseparable from linguistic form. Word for word rendering that aims at meaning alone cannot capture the poetic force. आप word for word meaning को capture कर लोगे, लेकिन जो poetic rhythm है उसमें, force है ओरिजिनल में, वो capture नहीं कर पाओगे आप fidelity के साथ। तो true fidelity lies not in reproducing sense, लेकिन also preserving that foreignness and structural tension of the original language within the target language. ठीक है? तो ट्रांसलेशन एज मेसियानिक प्रैक्टिस, जो उस जगह पहुंच जाए जहां पे सारी लैंग्वेजेस कन्वर्ज करती हैं। तो बेंजामिन अल्टीमेटली प्रेजेंट्स ट्रांसलेशन एज अ messianic, philosophical, and historical act. It participates in the long, unfinished process of linguistic reconciliation. While pure language can never be fully realized, of course, translation remains one of the most profound human attempts to approach the pure language. Therefore, translation is neither secondary nor instrumental. It is privileged site जहाँ पे literature, philosophy, history, language सब converge करते हैं, making it one of the highest forms of intellectual and creative labor. तो ये अब ठीक है, तो ये एक this is all there in the text. इसी को मैंने और डेप्थ में पॉइंट बाय पॉइंट भी लिखा है। ऑल द लर्नर्स जो मेरे साथ हैं, those who have subscribed to the course, you'll go through in depth
notes also. This art is not oriented towards an audience. Starting में हमने first paragraph पढ़ा. Any attempt to judge art based on its audience, real or ideal, is theoretically misleading. उसी तरह से art does not exist for attentiveness. ये कहते हैं कोई भी पोम रीडर के लिए नहीं लिखी जाती, पेंटिंग किसी भी होल्डर के लिए नहीं है, सिम्फनी किसी ऑडियंस के लिए नहीं है. इसका मतलब आर्ट does not derive its meaning or purpose from being received. Art posits human existence, but it does not address humans as consumers. तो मतलब ट्रांसलेशन थ्योरी मस्ट रिजेक्ट रीडर ओरिएंटेड मॉडल्स देन, राइट. फिर फॉल्स जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रांसलेशन एज कम्युनिकेशन की बात है. देन व्हाई ट्रांसलेशन एज ट्रांसमिशन produces bad translations, and it goes on. ठीक है. So this is an overview or a summary of Walter Benjamin's essay, The Task of a Translator. If you have time, please go through it line by line. If you wish to join my course, please get in touch. The details are in the description box. Let me also show you the tests website. This is my tests website. You can go and attempt tests also for UPPSC, GDC. Yeah. You only have to sign in, okay, once. Sign in करना ज़रूरी है. उसके बाद you will find the tests on your जो आपके टॉपिक्स हैं एक एक उन पे. इस तरह से. ठीक है. ये यूनिट 4 का एक टेस्ट था. ओह सॉरी, आई कुडंट शेयर द स्क्रीन. या दिस इज द वेबसाइट. Visit members only, then attempt the test, find UPPSC GDC and search. एक बार आपको साइन इन करना पड़ेगा. इस तरह से आपको सारे टेस्ट्स मिल जाएंगे. ठीक है. यू ओपन इट, यू विल फाइंड अभी ये क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग भी है तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द टेस्ट. 0.33% ऑफ द करेक्ट इज नेगेटिव. सो दिस इज हाउ इट इज. स्टार्ट टेस्ट एकदम ऑनलाइन जैसे आपका एग्जाम होता है वैसे ही ये टेस्ट है. इस तरह से आप कर सकते हो. नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे पूरा नेविगेटर चलेगा. आप 10th क्वेश्चन कहीं पे भी जाना है, यू कैन गो बैक. ठीक है. All right. I will see you in the next one. All the best.